Good morning, student. Today we will do the next part of our revision of chapter 1, that is food for good health. So till yesterday we have discussed about why there is a need of food, what are the components of food, what is balanced diet, then about junk food and the obesity, and last we have discussed about ways to remain healthy. So our today's topic is about health. What is health? So student, if you are talking about a health, if we want to decide a person is healthy or not, so we can say that a person is healthy, वो person healthy तब होगा when he have a strong body, when he have a disease free body and a alert mind. Mind कैसा होना चाहिए? alert होना चाहिए, concentration होना चाहिए, then we can say that a person is healthy. उसको हम तभी बोल सकते हैं कि वो person कैसा है, healthy होना चाहिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बॉडी, डिजीज फ्री होनी चाहिए एंड अलर्ट माइंड होना चाहिए, देन वी कैन से दैट अ पर्सन इज हेल्दी. सो इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्थ, सो वी कैन से दैट हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग, यानी फिजिकली भी फिट होना चाहिए और साथ ही साथ मेंटली भी वो क्या होना चाहिए, फिट होना चाहिए. माइंड का जो कंसंट्रेशन है वो भी प्रॉपर होना चाहिए, दैट इज पर्सन इज सेड टू बी हेल्दी. Now we will talk about to stay healthy we should. What we have to do to keep our body healthy and to remain healthy. So there are some methods by which we can remain healthy. The first one is have a proper balanced diet. So yesterday we have discussed that balanced diet is a meal or a diet that contains all the nutrients, all the components of food like carbohydrate, fats, proteins, vitamins, minerals, and along with this it also contains enough amount of water and roughage also. So a diet that contains all the nutrients is known as balanced diet, and have a proper diet. It is necessary to have a proper balanced diet to remain ourselves healthy. And we have also discussed that a balanced diet is different for different people. It depends on the age, it depends on the gender of a person, and it also depends on the physical activity performed by an individual. So a growing child needs more protein in their diet. कोई ग्रोइंग चाइल्ड होगा उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन अमाउंट चाहिए होता है अपनी डाइट में, बिकॉज जो प्रोटीन्स है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है एंड दे ऑल्सो हेल्प इन रिपेयरमेंट ऑफ दी वर्न आउट सेल्स. जो डैमेज सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करने में भी प्रोटीन हमारी हेल्प करते हैं. सो नेक्स्ट इज एक्सरसाइज. Along with the balanced diet, exercise is also necessary for us to remain healthy. अब एक्सरसाइज में आप स्विमिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, स्किपिंग कर सकते हैं. दिस ऑल कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट बिकॉज इट इंक्रीजेज ब्लड सर्कुलेशन, डाइजेशन एंड स्ट्रेंथन आवर नर्वस सिस्टम. ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है बिकॉज अगर हम एक्सरसाइज करते हैं while doing exercise, blood rate of blood circulation increases and the amount of blood reaches to our mind also increases. That's why it strengthens our nervous system. इसीलिए वो हमारा जो nervous system है उसको strong बनाने का काम करता है. Next is rest. Along with the exercise, rest is also necessary for ourselves to remain healthy. रेस्ट बिकॉज इट रिलैक्सेस आवर मसल्स. हमारे मसल जो है उनको वो रिलैक्स करता है एंड हेल्प द बॉडी टू ग्रो. और अगर हम बात करें जब हम रिलैक्स करते हैं, जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी मसल्स कैसे हो जाती है, रिलैक्स हो जाती हैं. एंड एटलीस्ट एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग नीड्स 6 to 8 hours ऑफ स्लीपिंग. अगर 6 to 8 hours की स्लीपिंग अगर हम नहीं ले रहे हैं देन इट मे लीड्स टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस. So it is necessary to take proper rest also, because after sleeping we feel energetic and we feel that there is more energy in our body. So next is maintain hygiene. Hygiene means अपने आप को साफ सुथरा रखना. So these are the good habits. Hygiene जो होता है it means these are the good habits that ensures the cleanliness and good health. अब good habits for example brushing your teeth twice a day and wash your hands before and after the meal and bath daily. So these are the good habits जो हमें cleanliness के लिए और हमारी good health में हमें help करती है. The next is posture. So posture is the position of the body, और
the position in which we hold our body while sitting, while standing and while walking. तो जब हम बैठे हैं at that time while we are standing and while we are walking, उस समय हमारी बॉडी की जो पोजीशन है that is known as the posture of the body. और अगर हमारा पोस्चर सही नहीं है then it may also leads to poor health of a person, because if we are sitting it is necessary to keep our back straight. If we are bending our back or we are leaning to other person, it means our posture is not correct and it will leads to many muscle problem and joint problem also. So these all are the ways by which we can keep ourselves healthy and our health will remain also good. So our next topic is diseases. So disease means it is a condition of in which our body or a part of it नॉट फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि बॉडी या और बॉडी या कोई भी जो पार्ट है, चाहे ऑर्गन कोई भी मान लें, चाहे हार्ट है, चाहे हमारे लंग्स है, चाहे हमारी आइज़ है, इफ़ दे आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली देन अ पर्सन इज सेड टू बी सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, यानी उस पर्सन को डिजीज़ है जिसका कोई भी बॉडी का पार्ट जो है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है. देन अ डिजीज़ कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज, communicable disease and non-communicable diseases. So communicable diseases हम उनको बोलेंगे जो communicate होती हैं, जो transfer होती है. So a disease is said to be communicable when it transfer from a healthy person or from a sick person to healthy person by means of air, water, food or by carriers. Then non-communicable means non-communicate, जो एक पर्सन से यानी कि जो सिक पर्सन है उससे हेल्दी पर्सन में ट्रांसफ़र नहीं होती है. सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ आर अ डिजीज़ दैट डू नॉट कम्युनिकेबल और दैट डू नॉट ट्रांसमिट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू एन हेल्दी पर्सन. नेक्स्ट, द डिसऑर्डर्स दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेस और द डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स, यानी कि किसी भी कमी से ना हो, यानी कि न्यूट्रिएंट्स की जब कमी, लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट्स हैं, हमारे जो कंपोनेंट्स हैं फूड के, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो फैट्स है, चाहे प्रोटीन है, चाहे विटामिन है, चाहे मिनरल है, उनकी कमी से जो डिजीज़ होती है दे आर नोन एज डेफिशिएंसी डिजीजेज और डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स. नेक्स्ट, if we talk about these deficiency disorders, the first one is the night blindness and it is caused due to deficiency of vitamin A. Any deficiency of vitamin A leads to night blindness and the symptoms of disease are poor vision and loss of vision in dark. यानी there is a problem in eyesight, देखने में प्रॉब्लम होती है, विजन प्रॉपर नहीं होता है, पुअर होता है, एंड डार्क में क्या होता है, जो कम्प्लीटली क्या होता है उनको प्रॉपरली दिखाई नहीं देता. सो द सोर्सेज और द फूड रिसोर्सेज दैट वी शुड ईट टू remove all this night blindness is which are rich in vitamin A. For example carrots है, green leafy vegetables है, ये सब हम खा के क्या कर सकते हैं, इस night blindness को remove कर सकते हैं. Next is beriberi and it is caused due to deficiency of vitamin B1 and in this disease nerve disorders that affect muscles and heart. हमारी जो नर्व्स होती है वो क्या होती है, उनमें इफेक्ट होता है और वो बाद में हमारी जो मसल्स है हमारी बॉडी की उसको और साथ ही साथ हमारा जो हार्ट है उसको भी क्या करते हैं, वो उसमें डिजीज़ जो है उससे रिलेट हो जाती है. तो अगर हम इसकी बात करें तो उसके लिए हमें अनपॉलिश्ड राइस है, जो सीरियल्स है, मिल्क है, फिश है, उस तरह के फूड आइटम है जो उस तरह के सोर्सेज हैं फूड के वो लेने चाहिए, सो दैट दिस वेरी डिजीज़ जो है उसको हम हमारी बॉडी से रिमूव कर सकें, क्योर कर सकें. द थर्ड इज द स्कर्वी एंड इट इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी एंड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर ब्लीडिंग गम्स एंड वाउंड्स टेक मोर टाइम टू हील. यानी जो हमारे गम्स हैं जिसमें हमारे जो टीथ हैं वो फिक्स होते हैं, उसमें क्या होता है ब्लड बहुत जल्दी निकल जाता है, एंड जो वाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी में घाव हो जाते हैं उनको ज़्यादा टाइम लगता है रिपेयर होने में, उन घाव को भरने में, हील होने में. एंड द सोर्सेज ऑफ द फूड आइटम दैट आर रिच इन विटामिन सी आर सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंज है, जो आपका लेमन है, दीज आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी. द नेक्स्ट इज द रिकेट्स.
and it is caused due to deficiency of vitamin D. विटामिन डी की डेफिशिएंसी से जो डिजीज होती है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है, दैट इज नोन एज रिकेट्स इन द चिल्ड्रन, वेयर इट इज ऑल्सो नोन एज ऑस्ट्रोमलेशिया इन द एडल्ट। इसमें क्या होता है, द सिम्टम्स आर बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड इन चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन होते हैं उसमें क्या होता है, बोन्स जो होती है वो सॉफ्ट हो जाती हैं, बैंड हो जाती है, वेरेज जो आपके अडल्ट ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें क्या होती है, ये ब्रिटल हो जाती है। ब्रिटल मीन्स ये बहुत जल्दी उन पर्सन में अगर वो थोड़ा सा भी कहीं छोटी सी ऊंचाई से भी गिरते हैं, इट मे लीड्स टू फ्रैक्चर इन देयर बोन्स। और अगर हम इसके सोर्सेज की बात करें, सो वी शुड टेक अ फूड रिच इन विटामिन डी। फॉर एग्जांपल मिल्क है, आपके जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मीट है, फिश है, वो सब हमें इसके लिए लेना। सो नेक्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज इज बोन्स एंड टूथ डिके। यानी बोन्स का करके वो भी सॉफ्ट हो जाती है, और डिके यानी टूथ जो होते हैं उसमें भी हमारे खराब होना उसको शुरू हो जाता है, दैट इज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। दिस डिजीज इज कॉल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम, एंड इन दिस द सिम्टम्स आर bones become soft and weak, whereas the tooth result in decay. The sources of the food material that we should eat for this: milk and milk products, green leafy vegetables. The next is the goiter, and goiter is caused due to deficiency of iodine. It's caused due to deficiency of iodine, and it result in swallowing in the neck and mental disability. यहाँ पर नेक के पास एक बहुत ज़्यादा ब्लस्टर्स टाइप का बन जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, और मेंटल डिसेबिलिटी यानी कि जो हमारी सोचने समझने की जो ब्रेन का जो कंसंट्रेशन होता है उसमें भी कोई ना कोई डिसेबिलिटी हो जाती है। एंड द सोर्स ऑफ द फूड आइटम्स आर आयोडाइज सॉल्ट हमें लेना चाहिए, एंड द फिश। वी शुड ऑल्सो टेक दीज फूड सोर्सेज to cure this goiter. The next deficiency disease is the anemia, and it is caused due to deficiency of iron. Iron की deficiency से होती है, and in this it result in the weakness and tiredness. इसके जो symptoms क्या होता है, जिस पर्सन को अनीमिया होता है उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस यानी कि बहुत ज़्यादा कमजोरी और बहुत ज़्यादा उसको थकान लगती है। एंड द सोर्स ऑफ द फूड आइटम दैट वी शुड टेक व्हाइल वी आर सफरिंग फ्रॉम अनीमिया आर स्पिनच, जो आपका पालक है, एप्पल हमें लेना चाहिए, रेजिन जो किशमिश है वो हमें लेनी चाहिए, पॉम ग्रेनेट जो अनार होता है, एंड द जैगरी दैट इज गुड़। ये सारी जो चीज़ें फूड आइटम्स हैं, दे ऑल आर रिच इन आयरन एंड हेल्प्स इन क्यूरिंग द अनीमिया। द नेक्स्ट इज द क्वाशियोकर, and kwashiorkor is a disease that is caused due to deficiency of proteins. प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी से जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होता है, डेफिशिएंसी डिजीज होती है, दैट इज नोन एज क्वाशियोकर। एंड सिम्टम्स ऑफ डिजीज आर स्वेलन स्टमक, यानी जो स्टमक होता है वो स्वेलन हो जाता है, फूल जाता है। थिन लेग्स जो होते हैं बहुत थिन हो जाते हैं। स्टंटेड ग्रोथ इन पर्सन की जो दोज वर सफरिंग फ्रॉम क्वाशियोकर हैव अ स्टंटेड यानी बहुत छोटी ग्रोथ होती है। एंड सोर्सेज ऑफ द फूड आइटम दैट वी शुड टेक टू क्योर दिस क्वाशियोकर आर वी, क्योंकि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से हो रही है तो हमें प्रोटीन रिच फूड खाना है। पल्सेज जो आपकी दालें हैं, एग, मिल्क, फिश एंड मीट ऑल आर द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज द मेरास्मस, and marasmus is a deficiency disease that is caused due to deficiency of proteins and carbohydrates. प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की डिफिशियंसी से जो डिजीज होती है दैट इज नोन एज मेरास्मस, एंड द सिम्टम्स ऑफ दिस डिजीज आर अंडरवेट। द पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम मेरास्मस विल वेट अंडरवेट, उसका वेट बहुत कम होता है, लीन बहुत झुका हुआ सा रहता है वो, एंड थिन बहुत ज़्यादा पतला भी वो होता है। Next are the sources of the food item that are rich in proteins and carbohydrates are wheat, rice, potato and meat. So the next topic is communicable diseases. So we have discussed there are two types of diseases, communicable and the non-communicable diseases. Previous year discussed about the non-communicable disease, and they are also known as deficiency disorders. Now we are talking about the communicable disease. So the disease that spread from an infected person to an healthy person. जो एक infected person से या फिर sick person से healthy person में ट्रांसफर हो जाती है
कम्युनिकेट हो जाती है, दैट डिजीज इज नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। एग्जाम्पल्स ऑफ सम कम्युनिकेबल डिजीज आर, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कॉमन कोल्ड है, कफ है, कोविड-19 जो आपका फैला हुआ है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, डायरिया है, टाइफाइड है, कॉलेरा, दीज ऑल आर नोन एज कम्युनिकेबल डिजीज। सो दीज डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू माइक्रोब्स। माइक्रोब्स मीन्स एज ए नेम डिफाइंड, जो कहलाते हैं दैट कैन बी सीन with the help of माइक्रोस्कोप, जिनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। दैट कैन नॉट बी सीन विद आवर नेकेड आई, नेकेड आई से नहीं देख सकते, दे आर नोन एज माइक्रोब्स। एंड द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स आर नोन एज जर्म्स। Disease causing microbes are known as germs. And if we talk about these germs, तो जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, वायरस है, ये सब क्या है? These all are known as germs and cause different diseases in our body. So harmful microbes which can cause disease are called germs. और जो germs हैं, they enter, microbes can enter in our body through following ways. कुछ methods हैं, कुछ ways हैं जिनसे क्या होता है, जो microbes है वो हमारी body में enter कर जाते हैं and then they cause different diseases in our body. तो first is through air and direct contact. थ्रू एयर और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से कैसे? फॉर एग्जाम्पल इफ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड और स्नीजिंग, कोल्ड से या फिर कफ से उसको क्या है, सफ़र कर रहा है कोई पर्सन, एंड इफ ही कफ्स और स्नीजिंग द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स एंटर इनटू द एयर एंड देन व्हेन अ पर्सन कम्स इन कॉन्टैक्ट ऑफ दिस ड्रॉपलेट्स then the person who is healthy one get infected by the this particular disease, cold or the cough. And direct contact, for example the belonging of the infected person, for example उनके clothes हैं, उनके utensils हैं, उनको भी क्या कर रहा है दूसरा person जो है वो भी यूज़ कर रहा है जो कि healthy है, तो वो भी क्या होगा, the disease is also transmitted to that person. for example जैसे measles है, इसकी बात करें हम, उसके बाद चिकन पॉक्स है, ये सब क्या है, कोविड-19 जो पे फैला हुआ है कोरोना, that is also a communicable disease and also caused due to virus. Now next is through food and water. If we eat unclean, यानी if we eat unclean water and the food, तो वाटर कैसा है, फूड क्लीन नहीं है, अनकवर्ड फूड हम खा रहे हैं, बहुत गंदा जो पानी है वो हम पी रहे हैं, देन इट कॉज अ वेरियस ऑफ डिजीजेज लाइक जैसे हम लोग देखते हैं कॉलेरा है, टाइफाइड है, इसके बाद डायरिया है। डिजीज जो है दे आर कॉज ड्यू टू ड्रिंकिंग पॉल्यूटेड वाटर एंड कंटेमिनेटेड जो फूड है, यानी कि अनकवर्ड जो फूड है, फॉर एग्जाम्पल रोड साइड जो वेंडर्स होते हैं उसको फूड को अगर हम खा रहे हैं, जो अनकवर्ड उस पर फ्लाइज बैठती है, उस पर मस्किटोज आके बैठते हैं, जो क्या करते हैं गंदी जगह पर बैठते हैं और वहाँ से क्या होता है जर्म्स को उस फूड के ऊपर ले आते हैं। दैट इज ऑल्सो सो थ्रू फूड, यानी कंटेमिनेटेड फूड और जो अनकवर्ड फूड और वाटर है, जो अनक्लीन वाटर उसको भी हम लेकर पीकर हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी जो डिजीज़ है कम्युनिकेबल डिजीज़ हमें हो सकती है। नेक्स्ट इज थ्रू इंसेक्ट बाइट्स। तो इंसेक्ट बाइट से क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जैसे फॉर एग्जांपल हाउस फ्लाई है और मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो जब किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन पर उसको मलेरिया हो रखा है उसको बाइट करता है, वहाँ से वो ब्लड को सक करता है, एंड अगेन आफ्टर सम टाइम इफ़ ही बाइट एन हेल्दी पर्सन, किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा तो जर्म्स जो कहाँ थे, एक इन्फेक्टेड पर्सन की बॉडी में थे, उससे उसने क्या कर दिया, उसको हेल्दी पर्सन की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिया। सो इंसेक्ट बाइट से भी कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, जैसे कि मलेरिया है, डेंगू है, ये क्या है, ये कैरियर होते हैं, इंसेक्ट्स जो होते हैं वो कैरियर होते हैं, जो क्या करते हैं पैथोजन को या फिर माइक्रोब को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में एंटर करवाने में काम करते हैं, एंड दस प्ले अ रोल इन ट्रांसफरिंग ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी। नाउ स्टूडेंट्स, हाउ वी कैन प्रिवेंट communicable disease from transferring from an infected person to healthy person. So prevention of communicable diseases,
कैसे हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं? बाय मेंटेनिंग गुड पर्सनल एंड कम्युनिटी हाइजीन। अपनी पर्सनल जो हाइजीन है यानी गुड हैबिट्स अपने अंदर डेवलप करके जो इंश्योर करती है हमारी क्लीननेस के लिए और हमारी हाइजीन जो है हमारी गुड हेल्थ जो है उसके लिए। साथ ही साथ जो हमारी कम्युनिटी हमारी जो सराउंडिंग है उसको भी हम नीट एंड क्लीन रखकर अपने आप को कम्युनिकेबल डिजीज से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज वी शुड ईट क्लीन एंड हेल्दी फूड। हमें क्लीन और हेल्दी फूड ही खाना है, जो रोड साइड वेंडर्स होते हैं वहाँ से हमें फूड नहीं खाना है। देन वी शुड वॉश अवर हैंड्स, ब्रश अवर टीथ एंड वेयर डेली। हमारे जो हैंड्स हैं उनको बिफोर द मील आफ्टर द मील हमें वॉश करना चाहिए प्रॉपरली। देन ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें ट्वाइस अ डे हमारे टीथ को ब्रश करना चाहिए और डेली हमें बाथ भी करना चाहिए। नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन एंड प्योर। जो वाटर हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं कि जो डिजीज़ हमारे वाटर से ट्रांसफर हो रही है उसके लिए हमें क्लीन ड्रिंकिंग और प्योर वाटर जो है वो क्या करना है, यूज़ करना है। या तो हम फिल्टर्ड वाटर यूज़ करें या फिर हम यूज़ करें बॉइल्ड वाटर को, जिसको हमें कवर्ड जो यूटेंसिल्स होते हैं उनमें स्टोर करना होता है। नेक्स्ट इज सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। जो हमारा सराउंडिंग है, आसपास वाला जो एरिया है, अपने घर को ही हमें नीट एंड क्लीन नहीं रखना, हमारे आसपास जो है उसको भी हमें नीट एंड क्लीन रखना है। बिकॉज जो मॉस्किटोज़ हैं, जो फ्लाइज है, वो क्या करते हैं, वहाँ से जो कुछ भी गंदगी है, डस्ट है, उस पर बैठती हैं और दे कैन एंटर इन आवर हाउस। सो दे ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसफरिंग ऑफ डिजीज। सो हमारे सराउंडिंग को हमें नीट एंड क्लीन रखना है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज गार्बेज जो है उसको हमें कवर्ड जो डस्टबिन होते हैं उसमें थ्रो करना होता है। नेक्स्ट है शुड नॉट अलाउ वाटर टू स्टेगनेट। यानी जो वाटर होता है, रनिंग वाटर जो है, हमारे ड्रेनेज सिस्टम का जो वाटर है उसको, या फिर हमें कोई भी जो पॉन्ड्स होते हैं, स्मॉल पॉन्ड्स है वहाँ पर, या फिर कोई भी वाटर के जो बटन्स होते हैं उसमें, या फिर कूलर है, टायर्स है, उनमें हमें वाटर को स्टेगनेट यानी रोक के नहीं रखना है, रुकने नहीं देना है। अगर वहाँ पर कहीं वाटर जमा है तो वी शुड clean that water because the stagnant water are the breeding places for mosquitoes और flies। mosquitoes जो है वहाँ पर बहुत जल्दी ब्रीड करते हैं और mosquitoes they are the carrier of diseases। next is sufficient sunlight and air। sufficient sunlight and air should enter our house। हमारा जो घर है उसमें सफिशिएंट सनलाइट और एयर जो है वो एंटर होनी चाहिए। बिकॉज जो सनलाइट है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन किलिंग द जर्म्स। So, some communicable disease can also be prevented by vaccination, and vaccination is a use of some vaccines, and vaccines contains dead or weak form of that particular microbe that cause particular disease। and what happens generally these are injected in our body। वो हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है हमारी जो बॉडी है उससे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर लेती है, क्योंकि हम उसको वीक फॉर्म और डेड फॉर्म में देते हैं। एंड जब कभी भी लेटर ऑन जब वो माइक्रोब जो है हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ पहले से ही प्रिपेयर कर चुकी होती हैं। जब हमने उसको वैक्सीन दिया था तो क्या होता है, जब एंटर रियल फॉर्म में हमारी बॉडी में करते हैं वो माइक्रोब्स, तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ होते हैं। हमारी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी होती है कि वो उस माइक्रोब को किल कर देती है। सो ये क्या है, हमारी बॉडी में हम आर्टिफिशियली या फिर इंजेक्टेड फॉर्म में या फिर ओरली हम लोग क्या करते हैं, उसी वैक्सीन के थ्रू यानी कि जो माइक्रोब जिससे डिजीज़ कॉज होती है उसी को हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवा देते हैं। जिससे क्या होता है, हमारी बॉडी में क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं और जो उस डिजीज़ से फाइट करने में हमें कैपेबल बनाते हैं। यानी कि एंटीबॉडीज़ क्या है, एक तरह से सोल्जर्स की तरह वर्क करते हैं। और जनरली जो वैक्सीनेशन है वो दिया जाता है यंग जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें, जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं जो उनमें ही ये वैक्सीनेशन दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, कुछ एग्जांपल देखें, अगर हम पोलियो वैक्सीन है जो कैसे दिया जाता है, ओपीवी यानी ओरली दिया जाता है एंड टू प्रिवेंट पोलियो। और अगर हम बात करें तो पोलियो जो है इट इज़ इरेडिकेटेड फ्रॉम द इंडिया, इंडिया से इसका इरेडिकेशन हो चुका है। नेक्स्ट इज लगभग एंड डीपीटी। जो डीपीटी क्या है, इट इज़ अ वैक्सीन फॉर डिप्थीरिया, पर्टुसिस एंड टिटेनस। टिटेनस के लिए, डिप्थीरिया के लिए, पर्टुसिस के लिए क्या है, ये डीपीटी का वैक्सीन दिया जाता है। एंड देन नेक्स्ट इज द एमएमआर वैक्सीन एंड इट इज टू प्रिवेंट द मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। इन डिजीज
डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए क्या होता है, हमारी बॉडी में ये सारे जो वैक्सीन हैं लगाए जाते हैं। जो पोलियो है वो क्या है, ओरली दिया जाता है, और जनरली क्या है, हमारी जो इंडिया है वहाँ से बहुत एक स्केल पे क्या है पोलियो जो है ख़त्म हो चुका है। नेक्स्ट इज एडवर्ड जेनर, जो थे ही इन्वेंटेड अ वैक्सीन टू प्रिवेंट स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स के लिए क्या है, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन बनाया था, और स्मॉल पॉक्स जो है वो भी क्या है, एक कम्युनिकेबल डिजीज है। सो दिस ऑल इज अबाउट द चैप्टर 1. सो रीड दिस चैप्टर carefully and then understand the topic and then learn the question answers. Thank you and have a nice day.